Hello everyone, hi, I am Shafali. Welcome to my channel Mast Musafir. So today, guess where we are? We are at the Safdarjung 2. It's one of my favorite places to come to whenever in Delhi. It's not like an architectural marvel, but it has got something, some magical quality about it. So what is the story? What is this place? How does it look like? What is the story behind it all? I'm gonna share with you guys now that I've brought you here. So yeah, welcome to Safdarjung's tomb. Okay, so that is the elaborate grand entrance, the Eastern Gate. Okay, this behind me is the main gateway, the Eastern Gateway, from where you enter. And you enter and you walk right straight, and this is what stares you in the face. This is the view you are greeted with. So yeah, the entry. Okay, this here, by the way, is the mosque near the entry gate. Well, it was a super windy day and I was clearly enjoying the breeze. And now, let's sit down for a chat. See, I know that history बहुत लोगों को बोरिंग लग सकती है. एक अच्छे खासे दिन पे कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट क्यों घूमना चाहेगा? एंड कौन इतनी कोशिश करना चाहेगा कि अब जाके हिस्ट्री बुक्स पढ़ो, ट्रैवलॉग्स पढ़ो, पुराने ज़माने में जाओ, हमें क्या मिल जाएगा? What is there to gain, buddy? But what if I tell you that you have to do none of that? You just come here, and by looking at the place, you'll be able to tell what is different, what is unique, what is special. So, don't you think you'd want to come and do that? Okay, so beginning से शुरू करते हैं. हम हैं कहाँ? हम हैं सफदरजंग टूम. सफदरजंग टूम जो है नवाब सफदरजंग के बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने बनाया है in the year 1754-80. This is a monument that is made in the late Mughal architectural style. So there's a T point, Lodhi Road और औरोबिंदो मार्ग का जो T point, जो intersection है ना, वहीं पे rest this magnificent, beautiful monument, Safdarjung's tomb. And this is Safdarjung and his wife's resting place. But first, who was Safdarjung? I'll tell you soon. Safdarjung was this warrior general kind of a person who had come from Persia, who came with ambitions कि मैं तो आके यहाँ पे मुगल कोर्ट को ज्वाइन करूँगा. So वो पर्शिया से आए, सीधा दिल्ली में लैंड नहीं किए, पहले मुगल एरिस्टोक्रेसी में शादी की और नवाब ऑफ अवध की बेटी से, और जब उनके फादर इन लॉ एक्सपायर कर गए तो वो खुद नवाब ऑफ अवध बन गए. एंड उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा, जो एरिया ऑफ रेन था उसको बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग किया, मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग किया, और तब तक दिल्ली में ना मुगलिया सल्तनत ना अपना पार्ट छोड़ती गई. और जब औरंगजेब का डिक्लाइन हो गया और उसके बाद इवेंचुअली जब मोहम्मद शाह रंगीला, एक और मुगल एम्परर थ्रोन पे आए, दैट वाज द टाइम जब ना मुगल एम्परर नाम का एम्परर रह गया था, क्योंकि तब तक ब्रिटिश पावर ने दे हैड सीप्ड इन. तो इट वाज एक्चुअली द ब्रिटिशर्स हु वर कंट्रोलिंग एंड गवर्निंग, और हम लोग के जो मुगल रूलर्स थे उनको पपेट रूलर्स का नाम दे दिया गया था. दे वर जस्ट उनको बैठा दिया गया था, बट उनके पास दे वर लाइक नॉमिनल हेड्स, बट दे डिडंट एक्चुअली एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ पावर. एंड जो रह गया था वो था सिंबॉलिक ऑर्डर. एंड वंस ही पास्ड अवे, देन गेस हु स्टेप्ड इन?
सफदरजंग ने अपना अपॉर्चुनिटी देख लिया। तो तब सफदरजंग ने अपना अपॉर्चुनिटी देख लिया कि भाई अभी कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है दिल्ली में, लेट मी कम। और वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उस समय मुगल रूलर ऑफ कोर्स एक डिसेंडेंट थे, वो बन गए थे। So Ahmad Shah Bahadur was the descendant of Muhammad Shah Rangila, and he became the Mughal emperor after him. And it is during his period that Safdarjung, came to Delhi. He became the Grand Vizier or the Prime Minister, but eventually he got too embroiled in the internal politics, leading to various conflicts between different power holders. And it was this over-involvement and his over-ambitious nature that became the cause of his downfall. अगेन मुगल्स के पास उस समय उतना कोई पावर था नहीं, तो दे वर लाइक टॉलरेटिंग बट अगेन सफदरजंग जो थे एम्बिशन की सीमा को लांघ चुके थे। ही हैड बिकम वेरी इनडिफरेंट एंड वायलेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट, एंड सो द मुगल्स रोप्ड इन द मराठास। मुगल्स ने मराठास को बुलाया और दोनों ने मिलकर सफदरजंग को हरा दिया। जब सफदरजंग की डेथ हो गई तो उनके जो बेटे थे नवाब शुजाउद्दौला, उन्होंने फिर मुगल से रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, ये उस समय दिल्ली की एक बंजर सी ज़मीन थी, इट वॉज अ वेस्ट लैंड, यहाँ पे मुझे अपने पिताजी का मकबरा बनाने दीजिए। सो उनके बेटे ने सफदरजंग के लिए ये टूम बनाया। एक्चुअली ना सफदरजंग और उनका जो टाइम पीरियड था ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो तब आए जब मुगल पावर एंड मुगल एम्पायर एकदम अपने पीक पे था, लेकिन बाय द टाइम सफदरजंग डाइड that Mughal power was receding. So Safdarjung is sort of synonymous with that period that saw it all from peak and rise to the decline, है ना। जब वो आए तो औरंगजेब फिर भी पावर में थे, और जब तक वो गए तब तक मुगल पावर, मुगल रूलर्स, एवरीथिंग वाज इन डिक्लाइन। इनफैक्ट सफदरजंग खुद इस मुगलिया दौड़ में घुस गए थे, लेकिन उनका भी अंत हो गया। आई थिंक दिल्ली ना लोगों के एम्बिशन का राइज और सोर्स और ओरिजिन भी है, और उनके एम्बिशन की सीमा भी। यहाँ लोग इतना एम्बिशन लेके आते हैं, दिल्ली गिव्स देम दैट प्लेस, दैट स्पेस टू कार्व देयर ओन नीश, बट दिल्ली ऑल्सो बिकम्स द प्लेस ऑफ देयर डाउनफॉल। एंड आई थिंक दिल्ली कीप्स अस ऑल इन चेक दैट वे। मतलब ये थोड़ा ड्रामेटिक साउंड कर रहा है, बट यू जस्ट इमेजिन कहानी ही इतनी बड़ी है। Now that was Safdarjung's story, and before we continue, let's just go around the place and enjoy its calm, beauty and peace. Look at the trees. This place is beautiful. Also, isn't it fun to be walking on dry leaves? I just absolutely love the crackling sound that they make. And now, let's talk about the architecture. When we talk about Mughal architecture, तो बोलते हैं ना हुमायूं's tomb, वो भी दिल्ली में एक बहुत ही मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट है। That was sort of a prototype. हुमायूं's tomb को एक एग्जाम्पल की तरह तौर लेके, एक इंस्पिरेशन की तरह लेके फिर आगरा का ताजमहल बना। एंड देन देयर इज दिस मॉन्यूमेंट आफ्टर हुमायूं's tomb which was like an inspiration, and then Tajmahal in Agra which was like an example of the peak of Mughal architecture. And then there's this Safdarjung's tomb which is actually one of the last Mughal architectures in Delhi, and it shows that कि ये लास्ट के फेज का है, because it is trying to keep up to that level, but somehow it is failing. And it is also, I think, it evokes Safdarjung's own journey, because he wasn't really Mughal. He tried to make inroads. His monuments tries to copy the Mughaliya style, but somewhere it is lacking. Okay, so I hope you can see the monument behind me, and I know it really reminds us of the grand Mughal monuments, right? But there's still something lacking. Okay, so basically, like most of the Mughal monuments and particularly mausoleums and tombs, it's a square structure, and I'll explain it to you. There is the garden. So first of all, it's an enclosed square structure. So there is a big wall that is the boundary, and that runs along the whole space. On the eastern side is the one and only main gateway through which you can enter. This gateway is also not that simple. There are basically multiple rooms and mosques and courtyards within this gateway. तभी इतना बड़ा area है. And this is how the eastern gateway looks from the inside.
Then you enter. As usual, entry में आते ही there is this water channel. There are fountains in between. Both sides में there are gardens and they have like palm trees planted over here. Then these 4 gardens on the side are the typical Mughal garden style, जिसको 4 बाग बोलते हैं. वो आपस में भी 4 बाग हैं, 4 gardens, और in total भी 4 है, 1, 2, 3, 4. And then बीच में there is the main monument and the Mughal tomb, which is built on a raised platform which has rooms around it on the first floor. ऊपर जाके 2 stories का building है. There is the main tomb and 4 minars also, but later. And ये 4 major channels है जो आते हैं, बीच में intersect करते हैं, monument है. And ये end पे this end and this end पे छोटे छोटे महल हैं. मोती महल है and इन दोनों में से एक जंगली महल है और एक है बादशाह पसंद, king's favorite. यहाँ पे actually जो family थी रहा करती थी, बट उसके बाद तो खैर समय बदला, वो लोग वहां से गए और अब इन्हें ऑफिसेस ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस बना दिया गया था. और फिलहाल अभी ये सब बंद हैं. दे आर लॉक्ड एंड दे आर नॉट ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग. सो दैट्स द मॉन्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू. पूरा मुगल जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ना उनका, जो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है, दैट हैज बीन फॉलोड. दैट इन द सेंटर इज द मसोलियम के बीच में देयर इज द बिग dome and it is surrounded by 8 rooms, 4 rectangular one and 4 octagonal one. There is a huge veranda outside. The architecture, the entire structure has been built with red sandstone, buff, with marble inlays, and then there is ornamentation, carved work. All of that is there. ऊपर में there are these open arches and niches and airy spaces. बीच में tomb है. Actually जो real tomb होता है वो अंदर होता है, basement में होता है. And there are 2, Safdarjung and probably his wife, which are actually in an earthen mound. ऊपर का जो marble का जो हम वो देखते हैं वो तो it's there as a symbolic purpose, and there is only one that is given there also. But even though it is like on the surface trying to capture the Mughal architectural style, the Mughal materials and sources, still somewhere it is sort of failing, because on a closer look you'll be able to see the imperfections. Alright, for instance, the marbles that have been used are not of very high quality. The ASI officers and also a lot of other people who have experts who have sort of visited, they say that the marble is not as white, it's sort of yellowish. The quality is not that good. Even red sandstone उस समय, because मिलना ही मुश्किल था and they didn't have the rich resources, so a lot of the red sandstone has actually been, they have got it by breaking other monuments. So अकबर के टाइम के रहीम खाना थे, you might want to look him up, he is also an interesting figure. तो उनका जो दिल्ली में टोम था, his resting place, उसको तोड़ के उसमें से सैंडस्टोन निकाल के यहाँ पे लगाया गया है. और भी कई पुराने मुगल जो भी मॉन्यूमेंट्स थे उनको तोड़ के उसमें से सैंडस्टोन यूज़ किया है. बाहर से भी जहाँ से सैंडस्टोन लाया गया, इट्स नॉट ऑफ दैट ग्रेट क्वालिटी. एंड मार्बल का पूरा ही स्ट्रक्चर नहीं है, बस अंदर जाओगे तो वेस्ट के लेंथ तक पे देयर इज मार्बल, ऊपर फिर प्रॉपर वो सैंडस्टोन यूज़ किया है, नॉट ऑफ ग्रेट क्वालिटी. सिमिट्री उतनी अच्छी नहीं है. जो लोग साइंटिफिकली इस एरिया को मैप कर चुके हैं, द सिमिट्री इज़ नॉट दैट गुड. एंड देन जो इसका ऊपर का जो डोम भी है, कुछ इट इज़ नॉट एकदम हेमिस्फेरिकल या फिर जैसा सॉलिड डोम होता था ऑफ अदर मुगल मॉन्यूमेंट्स लाइक हुमायूंस टूम एंड ऑल. वो इसको ना अनियन बल्ब या बल्बस टूम बोलते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये इलोंगेटेड है. सो डोम्स आर ऑल्सो लिटिल इम्परफेक्ट. इसमें भी वो राजपूताना छतरी और जाली वर्क है, झरोकाज है, वो बालकनीज हैं छोटी छोटी. बट इट लुक्स, द थिंग इज द प्लेस लुक्स लाइक अ पास्टिश. इट्स लाइक द डाइंग अटेम्प्ट्स ऑफ अ लूजिंग पार्ट टू होल्ड ऑन टू इट्स erstwhile glory. So they're trying very hard and you can see that in the monument. And because main चीज़ें जिससे वो सॉलिडिटी, वो ग्रैंडियर आता था, सिंस दे वर लैकिंग इन इट, तो ऐसा लगता है सरफेस लेवल पे ना इसको बहुत ब्यूटिफाई करने की कोशिश की है और वो थोड़ा एक्सेस में चला गया है. देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंटेशन, कुछ ज़्यादा ही प्लास्टर वर्क पे फूल पत्ते बना रखे हैं. बट फिर ये भी सोचने की बात है कि या तो आप इसको देखो कि ये मुगल मॉन्यूमेंट को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था और उस लेवल का नहीं बन पाया, या फिर आप इसको अपने आप में ही एक चीज़ देखो कि दिस इज अ मॉन्यूमेंट इन इट्स ओन राइट. इट इज़ अ स्टाइल इन इट्स ओन राइट.
वो मुगलिया नहीं था, तो इसलिए वो पर्शियन एलिमेंट्स भी आ रहे होंगे ऑफ ऑर्नामेंटेशन एंड ऑल ऑफ दैट. लेट्स जस्ट नॉट सी इट एज अ पुअर इमिटेशन बट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टाइम्स दैट वर, जब नहीं थे रिसोर्सेज, व्हेन द पावर वाज ऑन अ डिक्लाइन. ऑल्सो वन मोर थिंग, एंड ये विलियम डैलरम्पल भी अपनी किताब में लिखते हैं, जहाँ मैंने अगेन पहली बार पढ़ा था इस जगह के बारे में, कि यार वो जो फूल पत्ते हैं ना, जो ऊपर बहुत दिख रहे हैं आर्चेस में, नीशेस में, वो एक्चुअली पिलर्स में भी हैं और नीचे से भी आ रहा है. तो ही सेज कि मे बी इट शोज एंड सिम्बलाइजेस. अब पता नहीं वो ऐसा कह रहे थे और मैं उनकी बात से थोड़ी बहुत सहमत हूँ. मुझे अच्छा लगा उनका थॉट कि ये दिखाता है कि कोई नया बंदा कैसे रूट वो जन्म लेने की कोशिश कर रहा था, अपने रूट्स फैलाने की कोशिश कर रहा था. He came from Persia and he was trying to spread his roots, even the Mughal Sultanate, and grow from there and spread its branches. But that story ended midway. So just like this half abrupt, half ended monument. So yeah. So that was all that I could gather about the architectural style. But a building has so much more to tell. Okay, is it just me or does everyone like to keep on, walking through corridors? पता नहीं, मतलब वैसे ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ऐसा लगता है कि समय में रुक गए हैं. और मुझे लगता है ये दरवाजे, ये आर्चेस, ये कॉरिडोर्स, एज इफ यू वॉक थ्रू इट, आप एंटर कहीं से करोगे और निकलोगे कहीं. इट्स लाइक अ लिंकिंग ब्रिज, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. आप चलते जा रहे हो, इट्स अ लिंक, इट्स अ कनेक्ट, इट्स अ ब्रिज बिटवीन प्लेसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, between states of mind. I don't know, but एक ठहराव है. तो मैं अंदर एक स्टेयरवे के अंदर आके बैठ गई हूँ. बाहर इतनी गर्मी है, इतनी तपती हुई धूप है, एकदम सर के ऊपर है सूरज, और जैसे ही इस आर्कवे से आई स्टेप्ड इनसाइड, इट हैज़ बिकम सो मच कूलर. और यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है. इट्स लाइक यू हैव स्टेप्ड इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. हेलो अगेन, आई गेस इट्स चैट टाइम विद शिफाली अगेन. समटाइम्स आई मिस बीइंग अ किड, बिकॉज जब हम बचपन में किसी नई जगह पे आते हैं या किसी अपनी फेवरेट जगह को रिविजिट भी करते हैं ना, इट्स जस्ट प्योर जॉय, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट. और जब बड़े होते हैं तब भी इंटरेस्टिंग होता है घूमना, तब हम चीज़ें समझते हैं, हमें इतिहास जानना है, कॉन्टेक्स्ट जानना है, स्टोरी जानना है. पर तब शायद हम चीज़ों को उतनी रोज टिंटेड आइज़ की तरह नहीं देख पाते. जैसे मॉन्यूमेंट्स को लेके अक्सर ना मेरा ये सवाल उठता है, ठीक है ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स, हिस्ट्री का हिस्ट्री है, हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है, बट वो एक प्रॉब्लमैटिक थॉट ना हमेशा ही रह जाता है कि यार उस समय कितना अनफेयर वर्ल्ड था. नॉट एवरीबडी हैड दिस लैविश ग्रैंड लाइफस्टाइल. द पावर्टी, द इनजस्टिस, उस समय वायलेंट टाइम्स थे, सिक्योरिटी तो थी नहीं, कभी भी जंग हो जाता था, कुछ भी हो जाता था. मेजन्स का कंपटीशन इतना था, आज भी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे. It must not have been easy. I am grateful and thankful that something like this was left behind so that we have an avenue through which we can enter the, alleys of the past. But history सिर्फ राजा नवाबों की कहानियाँ तो नहीं थी ना. और उन आम लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इसे बनाया, इसे मेंटेन किया और आज भी कर रहे हैं. Historical monuments are not dead and stuck in time. They're kept alive and abuzz by the restoration and maintenance activities of the workers. And now I guess it's time to head back. I think like other monuments, after partition, this was also treated as a refugee camp. Humayun's tomb was definitely, and Purana Killa too, but I'm not so sure about this one. Look at these fountains and the palm trees. Let me know if these palm trees are from that age or were planted later on. And yeah, time to bid this place farewell for now. Goodbye. See you soon. I love coming to this place. Every time I learn something new and a little more, I'll come and share with you guys. Look at these fountains. I remember when I came here today in the morning, it was all so fresh and I could feel the sprinkles on my face. It's a lovely day. It feels great to be here. And इतने लंबे दिन के बाद एक आइसक्रीम तो बनती थी.
Alright, with that we have come to an end of our Safdarjung vlog. See you in my next video. Till then, take care of yourselves and bye-bye.